ड्यूटोनॉमी हम पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे BSI किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच्चाई के साथ हमारा सामना कराइए और पिता झूठ की ताकत खत्म कर दीजिए। जो भी झूठ है पिता परमेश्वर उसके ऊपर से हमारा विश्वास हटा लीजिए पिता परमेश्वर, और जो सच है पिता परमेश्वर उसके ऊपर हमें पिता ठहरे रहने दीजिए। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके अलावा पिता परमेश्वर और कहीं पर हमारा विश्वास ना रखें, हमारे खुद के ऊपर भी पिता परमेश्वर, अपने मन की सोचों के ऊपर भी नहीं, जो आपका वचन कहता है वहीं तक हम सीमित रहे पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। चैप्टर 5, a commemoration of the covenant in Horeb, the 10 commandments. At the people's request Moses receiveth the law from God. And Moses called all Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them and keep and do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us who are all of us here alive this day. The Lord talked with you face to face in the mount out of the midst of the fire. I stood between the Lord and you at that time to shew you the word of the Lord, for ye were afraid by reason of the fire, and went not up into the mount, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. That hath heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have and lived. Go thou near and hear all that the Lord our God shall say, and speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. And the Lord heard the voice of your words when ye spake unto me. And the Lord said unto me, I have heard the voice of the words and of this people which they have spoken unto thee. They have well said all that they have spoken. Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children forever. Go, say to them, Get you into your tents again. But as for thee, stand thou here by me, and I will speak unto thee all the commandments and the statutes and the judgments which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I gave them to possess it. Ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Chapter 6. Moses exalteth Israel to hear God and to keep his commandments, which consists in loving him with all the heart. They must not tempt the Lord. They are commanded to instruct their children. First verse. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes, and his commandments which I command thee. Thou and thy son and thy son's son
all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought them into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not, and houses full of all good things which thou fillest not, and wells digged which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantest not. When thou shalt have eaten and be full, then beware lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name, We shall not go after other gods, of the gods of the people which are around about you. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. देखा, परमेश्वर के पास अधिकार है किसी को भी पृथ्वी के ऊपर रहने देना है या नहीं देना है. ओके, और किसी के पास नहीं है, परमेश्वर के पास है. 16th verse, Ye shall not tempt the Lord your God as ye tempted him in Massah. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers, to cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken. And when thy son ask thee in time to come, saying, What mean the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God hath commanded you? Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord shewed signs and wonders, great and sore, from Egypt, from Pharaoh, and upon all his household, before our eyes. And he brought us out from thence, that he might bring us in to give us the land which he sware unto our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is at this day. And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as he hath commanded us. Chapter 7. All communion with the nations forbidden, for fear of idolatry, and for the holiness of the people, images to be destroyed. First verse. When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee,
the Hittites and Girgashites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, and thou shalt smite them and utterly destroy them, thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. हालेलुया. ये वचन को ध्यान रखिए आप. आगे 3rd वर्स से आगे बढ़े. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. But thus shall ye deal with them. Ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. Hallelujah. With fire. Hallelujah. हमको कुछ करने के लिए बोला है परमेश्वर ने. 6 वचन से आगे पढ़ेंगे, 6th वर्स से आगे. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Hallelujah. Hallelujah. कितना बड़ा प्रिविलेज दिया है प्रभु परमेश्वर ने हमको. The Lord did not see his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt. ये 8th वचन है जो हमको परमेश्वर क्यों सुनता है, हमारे क्या ज़रूरत है उसने हमारी दुआ सुनना है ना. 9th वर्स से आगे पढ़े. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. Hallelujah. And repayeth them that hate him to their face. To destroy them, he will not be slack to him that hateth him. He will repay him to his face. Hallelujah. Okay. Thou shalt therefore keep the commandments and the statutes and the judgments which I command this day to do them. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers, and he will love thee, and bless thee, and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee. Thou shalt be blessed above all people. There shall not be male nor female barren among you or among your cattle. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt which thou knowest. Okay. Knowest upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. And thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eyes shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. Okay? देखो, अगर आप दुष्टता करने वालों के ऊपर रहम करते रहोगे, हकीम है वो लोग, हकीमों के ऊपर रहम करते रहोगे, वही आपके लिए फंदे बन जाएंगे. ओके. If thou shalt say in thine heart, these nations are more than I, how can I dispose them? ओके. तो हकीमों का झुंड देखकर हमको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि हाँ वो इतने और हम इतने ही, ऐसे आपको लगेगा. लेकिन हमारा फाइट उनके नंबर्स के ऊपर नहीं है. ओके. वो गिनती में कितने उसके ऊपर नहीं है. 18 वर्स देखिए.
Thou shalt not be afraid of them, but shalt will well remember what the Lord thy God did unto Pharaoh and unto all Egypt, the great temptations which thine eyes saw, and the signs and the wonders and the mighty hand and the stretched out arm, whereby the Lord thy God brought thee out. So shall the Lord thy God do unto all the people of whom thou art afraid. Hallelujah. Wonderful God we serve. Moreover, the Lord thy God will send the hornet among them, until they that are left and hide themselves from thee be destroyed. Thou shalt not be affrighted at them, for the Lord thy God is among you, a mighty God and terrible. And the Lord thy God will put out those nations before thee by little and little. Thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee. But the Lord thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction until they be destroyed. And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven. There shall no man be able to stand before thee until thou have destroyed them. The graven images of their God shall ye burn with fire. Thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein, for it is an abomination to the Lord thy God. Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it, but thou shalt utterly detest it. Utterly detest it बोला है, utterly. ओके, मतलब जी जान तोड़कर आप विरोध करना है हकीमों का, हर एक इंतजाम का आपने जी जान तोड़कर विरोध करना है. एंड दाउ शल्ट अटरली अबोर इट, फॉर इट इज अ cursed थिंग. हालेलुया. ओके, तो हमारा विरोध परमेश्वर के वचन के लिए हम शत्रु का विरोध कर रहे हैं. हम अपने मर्जी के लिए नहीं कर रहे, हमारी मनमानी के लिए नहीं कर रहे. हम शत्रु के विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे वचन हमको वचन के अधीन रखना चाहता है. इसके लिए ओके, जैसा परमेश्वर रहना चाहता है वैसा हम उसके साथ रहना है. आमीन. अब हम पढ़ेंगे हिंदी में से व्यवस्था विवरण, उसका 5, 6, 7 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय से शुरू करेंगे. 10 आज्ञा. मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो. हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी. इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है. यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों के आमने सामने बातें की. उस आग के डर के बारे में तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा. तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ. हालेलुया. व्यवस्था विवरण में परमेश्वर जो वचन बोलता है बहुत मुझे, यूहन्ना और व्यवस्था विवरण ऐसा है, एक हो जाता है कि जैसे खुद परमेश्वर हमको बोल रहा है. ओके, देखिए 7 वचन से, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ. और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ. और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ.
तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तो परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तुम आप दास थे, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल या गदहे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं में लिखकर मुझे दे दिया। लोगों का भयभीत होना। 23 वचन से आगे, जब पर्वत आग से दाहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाए, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारे परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जा, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहे, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। महा आज्ञा 6 अध्याय पहले वचन से। यह वह आज्ञा और ये वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने के तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ उस अपने जीवन भर चलते रहो,
जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और वे आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीका का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी। 10 वचन से आगे, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े अच्छे नगर और जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी को की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं की अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं को के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इनको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने को आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इन रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हमें अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। प्रभु के अपने लोग 7 अध्याय पहले वचन से, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना।
क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा के कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनके खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। ओके, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनमें बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। आज्ञा पालन की आशीषें। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो मेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नये दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों की ही को लगेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक है, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपने आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ती हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा। तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, नहीं तो बनाइले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा। और जब तक वे नष्ट न हो जाए, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी या सोना उन पर मढ़ा हो,
उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उससे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें तेरे वचनों में फिट एंड फिक्स किया, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाया। इसलिए तुझे धन्यवाद करते नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, हमारी विनतियों को, हमारे सारे काम जो तू चाहता है उसके अनुसार करने को अनुग्रह कर और दया करके परमेश्वर हमें आगे बढ़ने का रास्ता दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 28 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स, सैम्स 79 चैप्टर 80 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन, भजन संहिता 69 और 79 और 80 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ना है। जब हम अकेले में व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें सुधार करने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए जो कहेगा हम उसे ग्रहण कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं सभीों ने अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में बैठकर इसे पढ़ना है, ज़रूरी नहीं ऐसा। आप अपने तरीके से परमेश्वर का आत्मा जैसा अगुवाई करे वैसे आप इसे पढ़ सकते हो। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है और परमेश्वर के आत्मा का लाभ हमने उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।